السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرق الأفعال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير التحويل قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی العاص بن اس کو آن کرتے ہیں تو بھی نہیں آن ہوتا ہے وہاں سے۔ ہاں ایک سیکنڈ بیٹا، وہاں سے نکال کر کے پھر داخل کرتے ہیں تو بھی آن نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ولی ابی العاص ولی ابی العاص بن الربیع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها قال يحيى قال مالك نعم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال قلت لمالک، یحییٰ بن یحییٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام مالک سے کہا، حدثک، یہاں حمزہ استفہامیہ مقدر ہے، کیا آپ سے عامر بن عبداللہ بن زبیر نے ایسے ایسے یہ حدیث بیان کی ہے؟ اب اس کا جواب جو ہے اخیر میں ہے، قال مالک نعم، امام مالک نے کہا ہاں، ایسے ایسے اس سند سے اور اس متن سے یہ بیان کیا ہے۔ کیا آپ سے عامر بن عبداللہ بن زبیر نے عمر بن سلیم زرقی کے واسطے سے اور انہوں نے ابو قتادہ سے حدیث روایت کی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اس حال میں کہ آپ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوئے تھے۔ ولی ابی العاص بن الربیع، اور یہ امامہ کون ہیں؟ ایک تو بنت زینب ہیں اور دوسرے بنت ابو العاص بن ربیع ہیں، زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو العاص۔ اب اس میں ہے ابو العاص بن ربیع، تو اس میں جو ہے ابو العاص بن ربیع ہے، ابو العاص کی نسبت ربیع کی طرف ہے، لیکن موطا کے اکثر راویوں نے امام مالک سے ابن ربیعہ ذکر کیا ہے، یعنی ابو العاص بن ربیع کے بجائے ابو العاص بن ربیعہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہی نسبت ذکر کی ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ اس تضاد کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ امام اصیلی نے کہا ہے دراصل یہ ابو العاص بن ربیعہ ہیں، ابو العاص بن ربیعہ ہیں۔ تو امام مالک نے اور جن لوگوں نے ربیعہ کی طرف نسبت کی ہے انہوں نے دادا کی طرف نسبت کر دی ہے، اور جنہوں نے باپ کی طرف نسبت کی انہوں نے ابو العاص بن ربیع کہا۔ یہ گویا امام مالک کی روایت میں اور مسلم اور دوسری روایتوں میں یہ تطبیق دی ہے کہ ان کا نسب ہے ابو العاص بن ربیع بن ربیعہ۔ تو بعض لوگوں نے، بعض راویوں نے باپ کی طرف نسبت کر کے ابو العاص بن ربیع کہا، اور بعض نے دادا کی طرف نسبت کر کے ابن ربیعہ کہا۔ تو یہ جب آپ کھڑے ہوتے تو ان کو اٹھا لیتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تو ان کو رکھ دیتے تھے۔ یحییٰ راوی نے کہا، امام مالک کے شاگرد نے کہا
کہ امام مالک نے کہا ہاں، یعنی میرے اس سوال کا جواب انہوں نے نعم سے دیا. تو باب میں تو تفصیل ذکر ہی کر دی ہے، جو مسائل کا استنباط ہو رہا وہ پورا ذکر کر دیا ہے کہ نماز میں بچے ہوں یا کوئی دوسری پاک چیز ہو، اگر آدمی اٹھا کے نماز پڑھ رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں. بچوں کے کپڑے جو ہے طہارت پر محمول ہوں گے جب تک کہ ظاہری نجاست نہ دکھے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فعل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر فعل کثیر ہو لیکن ایک ساتھ نہ ہو، وقفے وقفے سے ہو، تو بھی اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز میں ان کو اسی طرح سے اٹھائے رکھا. چلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت، رافت اور رحمت کا ثبوت ہوتا ہے. چلو، بعض لوگ اس کو جو ہے نفلی نماز پر محمول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نفلی نماز میں ایسا کرنا جائز ہے، فرض نماز میں جائز نہیں ہے، جبکہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں صراحت ہے وہ یوم الناس فی المسجد، مسجد میں آپ لوگوں کی امامت کراتے ہوئے ایسا کر رہے تھے. چلو، تو شاید بچے کو مطلب اس طرح سے گود میں اٹھا کر کے نماز پڑھائیں گے تو مطلب نگاہ تو سجدے کی جگہ پر نہیں رہے گی، تو بچے کو مطلب دیکھ کر کے نماز پڑھایا جا سکتا ہے. تو اگر بچے کو دیکھا نہیں جائے گا تو رونے لگتا ہے. نہیں، بچے کو کاہے دیکھیں گے؟ اب ظاہر ہے کہ مسلی تو نہیں ہے، امام ہے، تو بچے کو آگے نہیں بٹھائے گا بلکہ بغل میں بٹھائے گا، اور بچہ جو ہے بغل میں بیٹھا رہے گا. ہو سکتا ہے کبھی رو بھی دے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں روئے گا، لیکن بچے کی دلجوئی کے لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں وہ اپنی نواسی کو گود لے کر کے نماز پڑھاتے رہے، زمین پر رکھتے پھر اٹھا لیتے، پھر رکھتے پھر اٹھاتے، تو اس سے آپ کی نماز میں خلل نہیں ہوا، خشوع اور خضوع میں کمی نہیں آئی. جبکہ ایک بار آپ خمیسہ دھاری دار چادر اوڑھ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو نماز سے فارغ ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ تم یہ خمیسہ لے جاؤ اور ابو جہم سے کہو کہ وہ انبجانی چادر دے دیں، یعنی اس کو لے لیں اور انبجانی چادر دے دیں. تو وہاں تو نماز میں خلل ہو رہا تھا، خشوع خضوع میں کمی آ رہی تھی، اور یہاں نہیں آئی. اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں دھاری دار نقش و نگار والی چادر بے سود تھی، بے فائدہ تھی، اور یہاں بچے کی دلجوئی مقصود ہے، اس پر شفقت مقصود ہے، اس وجہ سے شریعت نے اتنا جائز قرار دیا ہے. چلو، اس کو چھوڑ ہی دو نیچے والی محمد بن ابو عمر کی، اور اس کے بعد والی بھی وہی ہے تقریباً. ہاں، قتیبہ بن سعید والی بھی وہی ہے. اب آگے چلے جائیے باب پر، باب و جواز الخطبہ والخطبتین یا خطبہ والخطبتین. جی سر، بس باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة، وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمون، ارفع غیر منصرف ہے نا، على موضع ارفع من المامونین لحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك. الصلاة تعلیم مصدر ہے، اس کا مفعول بن جائے گا، كتعلیمهم الصلاة او غیر ذلك. كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال اما واللہ اما
فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوضيت هذا الموضع فهي من من طرفاء الغابة طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. शकिलाहुमा अन अब्दुल अजीज मेरे नुस्खे में उसके बाद है काला यहया अखबरना अब्दुल अजीज बिन अबी हाजिम अन अबी है। आपके नुस्खे में गालिबन ये नहीं है क्या? किलाहुमा अन अब्दुल अजीज है तो शेख है। देखिए तो ये दोनों शयूख जो हैं इमाम मुस्लिम के यहया और कुतैबा ये दोनों अब्दुल अजीज से रिवायत करते हैं, लेकिन दोनों के रिवायत के सेगे में फर्क है। यहया शेख ने कहा है अखबारना अब्दुल अजीज इब्न अबी हाजिमिन, और ऊपर था अन अब्दुल अजीज। इसका मतलब कि अन अब्दुल अजीज वाला सेगा ये कुतैबा बिन सईद शेख का है, और यहया शेख ने अन की जगह पर अखबारना का जिक्र किया है। एक तो अन और अखबारना का फर्क हुआ, दूसरा फर्क यह है कुतैबा शेख ने खाली अब्दुल अजीज कहा है और यहया शेख ने अब्दुल अजीज बिन अबू हाजिम यानी नाम और वल्दियत दोनों जिक्र की है। ये दकीक इल्मिया है। यहाँ वो अपने बाप से रिवायत करते हैं यानी अब्दुल अजीज इनसे अबू हाजिम से कि एक जमात लोगों की आई सहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हो के पास, कद तमारो फिल मिंबर, वो झगड़ रहे थे मिंबर के बारे में, मिंबरे नबवी के बारे में। झगड़ा क्या था, इख्तिलाफ क्या था, मिन अय्ये उदिन हुआ, आपका मिंबर किस लकड़ी का बना हुआ था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। फकाल तो सहल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमा हरफे तंबी है यहाँ, सुनो अल्लाह की कसम, कसम खा के कहा। इससे मालूम हुआ कि बगैर कसम खाए खिलाए भी कसम खा सकता है आदमी। इन्नी लारिफ, बेशक मैं जानता हूँ पहचानता हूँ कि किस लकड़ी से बना था वो, वमन अमिलहु, और किसने बनाया था उसको। और मैंने जब बन के तैयार हो गया तो मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दिन कि आप उस पर बैठे, यानी उस पर बैठे और बैठ करके फिर आपने लोगों को खिताब किया। काला फकुल्तु लहू, रावी कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि ए अबू अब्बास, साल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत है, ए अबू अब्बास हदीसना, तो आप हमसे वो हदीस बयान कर दीजिए। किस लकड़ी का था, किसने बनाया था, और क्या पस मंजर था आप खुतबा देने के लिए बैठे उस पर। रावी कहते हैं सहाबी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के पास पैगाम भेजा। अबू हाजिम जो रावी हैं वो कह रहे हैं इन्नहु ला युसम्मीहा यौमइदिन, इन्नहु में जो जमीर है उसका मर्जा सहल बिन साद है। ये अबू हाजिम अपने शेख सहल बिन साद के बारे में। भाई माइक बंद कर लीजिए। हाँ, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, किसी ने। जी शेख, वो भूल गया था। कोई बात नहीं। तो अबू हाजिम कह रहे हैं इन्नहु ला युसम्मीहा, बेशक वो
अलबत्ता उस औरत का नाम ले रहे थे उस दिन, यानी जिस दिन हदीस बयान की तो उस औरत का नाम भी ले रहे थे। तो इन्नहु का मर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि सहल बिन साद हैं। क्या फरमाया था आपने? उनजरी गुलाम की नज्जार, यहां उनजुरी का सेगा है, हुक्म करना। और बुखारी की एक रिवायत में है मुरी गुलाम के, यानी उनजुरी की जगह पर मुरी, अमरा यामरू से, माना दोनों का एक ही करेंगे कि तू अपने नज्जार यानी कारपेंटर, बढ़ई गुलाम को, बढ़ई लड़के को हुक्म दे कि वो बनाए मेरे लिए लकड़ियां, यानी लकड़ियों का मिंबर, कि मैं लोगों से उस पर कलाम करूं। यानी मिंबर कहो कि बना करके दे दे, मिंबर पर बैठ करके उस पर चढ़ करके मैं खुतबा दिया करूंगा। अच्छा, अब उस लड़के का नाम क्या था? इसके सिलसिले में हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने कई अकवाल का जिक्र किया है। उन अकवाल का जिक्र करने के बाद फरमाते हैं व अशबहुल अकवाल अस्सवाबो कौलो मन काला हुआ मैमून। अशबहुल अकवाल अस्सवाबो कौले मन काला हुआ मैमून। कह रहे हैं कि जितने अकवाल हैं उनमें सवाब और दुरुस्ती के करीब मैमून जिसने कहा है उसकी बात है। व अम्मल अकवालुल उखरा फला अतेदाद बिहा ले वहायहा। दूसरे अकवाल हैं उनका कोई शुमार नहीं, क्योंकि उनके अंदर दोफ है। तो हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने मैमून नाम जिक्र किया है उस लड़के का जिसने मिंबर बनाया था। आगे कहते हैं फ़ामिला हादिही सलासा दरजातिन। एक बार फिर से बता दें हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह का कौल। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने मुख्तलिफ अकवाल जिक्र करने के बाद कहा है, इसके बारे में, उस लड़के के नाम के बारे में कहा है कि अशबहुल अकवाले अस्सवाबो कौलो कौले अस्सवाबो कौलो मन काला हुआ मैमून व अम्मल अकवालुल उखरा। क्या तारिक भाई माइक बंद कर लो। तारिक भाई माइक बंद करो। वस्समाए वत्तारिक, परेशान करके रख दिया तारिक भाई ने। अरे तारिक बोलो तो। व अम्मल अकवाल अल उखरा फला एतदाद बिहा, फला एतदाद बिहा ले वहाइहा। वहा यही वहियन कमजोर होना, ज़ईफ को वहा माने वाहिया भी। ज़ईफ। हाँ, इसी से वाहियात है। अच्छा, अब वो कैसे था मिंबर? कह रहे फ़ामिला हादिही सलासा दरजातिन। उस लड़के ने ये 3 दर्जात बनाए, यानी 3 दर्जात वाला मिंबर बनाया। 3 दर्जे थे उसमें। तो अब लुगत जो है होना चाहिए थे अरबी लुगत के एतबार से सलासुद दर्जात या अदरजातुस सलास, लेकिन यहां कहा है हादिही सलासा दर्जातिन। तो लुगत कलीला है, ऐसा भी इस्तेमाल कर लेते हैं वो लोग। तो इससे मालूम हुआ कि वो मिंबर नबवी जो है 3 दर्जे वाला था। और वो 3 दर्जे वाला मिंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और खुलफाए राशिदीन के ज़माने में बरकरार रहा।
3 ही दर्जे थे उसमें। फिर मरवान ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में नीचे से 6 दर्जे का इजाफा किया, बहुत ऊंचा कर दिया। और उसका पस मंजर ये बताया जाता है कि असल में मरवान ने मिंबरे नबवी को वहां से उखाड़ा और वहां से उखाड़ करके वो ले जाना चाहता था कूफा वगैरह या मस्जिद दिमश्क। जब उसने मिंबरे नबवी को उखाड़ा तो पूरा मदीना जो है स्याही में डूब गया, स्याही छा गई पूरे मदीना में। लोग परेशान हो गए, पता लगाने लगे कि आखिर माजरा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ। तो पता चला कि मिंबरे नबवी उखड़ा हुआ है, अपनी जगह से हटा हुआ है। तो लोगों ने समझा कि शायद यही बात है। फिर मरवान ने अपनी खफगी, अपनी खिफ्फत छुपाने के लिए कहा कि मैंने इसलिए उसको उखाड़ा है कि इसमें नीचे से कुछ दर्जात और बढ़ा दूं ताकि ऊंचा हो जाए, लोगों की तादाद अब ज्यादा हो गई है। हालांकि उखाड़ा था वहां से हटाने के लिए, ले जाने के लिए। बहरहाल फिर हुक्म दिया उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी उस मिंबर के बारे में हुक्म दिया। फवदिअत हादल मौदिआ, तो उसे इस जगह पर रख दिया गया। फहिय मिन तरफाइल गाबा, तो ये गाबा, गाबा जगह का नाम है मदीना में, अवालिए मदीना में गाबा जगह है। और तरफा कहते हैं झाऊ को, झाऊ। तो यहां तरफाइल गाबा है। और बुखारी की एक रिवायत में है मिन असलिल गाबा, असल हमजा सा लाम, मिन असलिल गाबा, दोनों का माना होता है झाऊ का दरख्त। तो वो गाबा मकाम के झाऊ के दरख्त का बना था। और तहकीक की मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप उस मिंबर पर खड़े हुए, फिर अल्लाह अकबर कहा, वकब्बर अन्नासो वराहू, और आपके पीछे लोगों ने भी तकबीर कही। वह अलल मिंबरे, इस हाल में कि आप मिंबर पर थे, यानी मिंबर ही पर अल्लाह अकबर कह करके नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया और लोग जो है नीचे नमाज पढ़ने लगे। सुम्मा रफा ऐ रफा रासहू मिनर रुकू, फिर आपने सर उठाया रुकू से। फनज़लल कहकरा, कहकरा कहते हैं एड़ी के बल लौटना। तो उतरे आप मिंबर से एड़ी के बल, यानी घूमे नहीं, क्योंकि आप नमाज पढ़ रहे थे, आपका रुख किबला की तरफ था। तो एड़ी के बल आप पीछे की तरफ उतर गए, यहां तक कि सजदा किया आपने फी असलिल मिंबर, मिंबर के जड़ में, असल में, यानी मिंबर के पास, जमीन पर मुराद है। तुम्मा आदा हत्ता फरगा मिन आखिर सलाती, फिर लौटे आप, यानी फिर मिंबर पर चढ़ गए और इसी तरह से नमाज पढ़ी और आखिरी नमाज पूरी कर ली। हत्ता फरगा, यहां तक कि फारिग हो गए आप अपनी आखिरी नमाज से। फिर लोगों पर मुतवज्जे हुई और फरमाया, ऐ लोगों, बेशक मैंने ऐसा किया है ताकि तुम मेरी इक्तिदा करो और ताकि तुम मेरी नमाज सीख सको। यानी नमाज की तालीम देने के लिए, नमाज की तालीम देने के लिए मैंने ऐसा किया, ऊंची जगह पर खड़े होकर के तुमको नमाज पढ़ाई ताकि तुम मेरे हरकात व सकनात को अच्छी तरह देख सको और महफूज कर सको। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को किताबुल जुमा बाबुल खुतबा अलल मिंबर में जिक्र किया है। तो और इनके हिशाम बिन साद अन अबी हाजिम इंद तबरानी,
हिशाम बिन साद ने अबू हाजिम से रिवायत की है जो तबरानी में है, उसमें है फ़ख़तबन नासा अलैहि सुम्मा उक़ीमतिस सलातो फ़कब्बर वहुव अलल मिंबर। यानी उसमें थोड़ी तफसील है कि आपने जो है पहले खुतबा दिया, फिर नमाज के लिए इकामत हुई, फिर आपने मिंबर पर अल्लाह अकबर कह करके नमाज शुरू की और सहाबे किराम नीचे नमाज पढ़ रहे थे। तो इससे मालूम हुआ कि बवक्ते ज़रूरत अगर इमाम ऊंचाई पर हो, नमाज पढ़ाए, लोग नीचे हों तो कोई हरज नहीं है, लेकिन आम मामूल ऐसा नहीं होना चाहिए। आम मामूल बराबरी का होना चाहिए, बराबर जगह पर लोग खड़े हों, मुक्तदी में इमाम आगे हो और मुक्तदी पीछे हो। आपने जो है नमाज खत्म करने के बाद ये जो आखिरी जुमला फरमाया था, या अय्युहन्नास इन्नमा सनअतु हाज़ा लितअतम्मू बी, इससे मालूम हुआ कि अगर कोई आदमी, इमाम, उस्ताद, कबीरुल कौम कोई ऐसा काम करे जो खिलाफे मामूल हो, खिलाफे आदत हो, तो उसकी इल्लत और उसका सबब बयान कर देना चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए। चलो, ये तालीमी नमाज है। इससे यह भी मालूम हुआ कि आदमी तालीमी नमाज भी पढ़ा सकता है, क्योंकि कौल के मुकाबिल में अमली तालीम जो है वो ज्यादा मुअस्सिर होती है। قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عوينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. ये उतैबा बिन सईद याकूब बिन अब्दुर्रहमान से रवायत करते हैं और तहवील के बाद है हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा व ज़ुहैर इब्न हर्ब व इब्न अबी उमर कालू हद्दसना सुफियान इब्न उयैना। तो गोया सुफियान बिन उयैना और याकूब बिन अब्दुर्रहमान ये दोनों एक दर्जे में हुए। तो ये अबू हाजिम से रिवायत करते हैं। अबू हाजिम ने कहा कि लोग आए सहल बिन साद के पास, तो उनसे सवाल किया कि किस चीज का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर था। वसाकुल हदीसा, अब साकू को जमा इस्तेमाल किया है, जबकि इसका मर्जा सुफियान बिन उयैना और याकूब बिन अब्दुर्रहमान है। तो कायदा के एतबार से वसाका अल हदीसा कहना चाहिए, तस्निया है, इसलिए कि मर्जा दो ही हैं। तो जमा इस्तेमाल कर लिया है, कभी दो पर भी जमा का इतलाक हो जाता है, यानी तीन से कम पर भी जमा का इतलाक होता है, इस लिहाज से साकू कह दिया। या इस वजह से साकू कहा कि जो नीचे के रावी हैं वो भी मुराद हों, सुफियान से नीचे, सुफियान और इनसे याकूब के नीचे जो रावी हैं वो मुराद हों, तो बहुत सारे होंगे, इसलिए साकू भी कह सकते हैं। चलो आगे बाब باب كراهة الاختصار في الصلاة. قال وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. तो इसमें कोई खास बात नहीं है, मुख्तसर टुकड़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इस बात से कि आदमी नमाज पढ़े इस हाल में कि वो इख्तिसार करने वाला, मुख्तसिरन इस्म फाइल है। और बुखारी की एक रवायत में है नहा अनिल खसरे फिस सलात,
तो ये इख्तिसार और खस्र का माना क्या है, इस सिलसिले में उलमा के कई अक़वाल हैं। इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं वो सही बात जिस पर मुहक्किकीन हैं और अक्सर अहले लुगत और गरीब और मुहद्दिसीन हैं, यानी गरीबुल हदीस में जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं और मुहद्दिसीन तो इन लोगों ने कहा है कि इख्तिसार का माना ये है कि आदमी नमाज पढ़े और अपना हाथ अपनी कमर पर रखे हो, अपनी कमर पर अपना हाथ रख करके नमाज पढ़े, इसको इख्तिसार कहते हैं। और बुलुगुल मराम में आपने एक हदीस पढ़ी होगी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, उसमें भी ये बात है इख्तिसार वाली, नहा अन युसल्ली रजुल मुख्तसिरन, उसमें आगे है वो माना हो अन यजअला यदहु अला खासिरतिही, माना हो अन यजअला यदहु अला खासिरतिही, यानी इख्तिसार का माना ये है कि आदमी अपना हाथ अपनी कमर पर रख करके खड़ा हो, नमाज पढ़े। तो सही बात यह है। और दूसरा कौल ये है कि उसका माना ये है इख्तिसार का कि आदमी लाठी ले ले, हाथ में लाठी लेकर के खड़ा हो और उसी लाठी पर टेक लगा करके नमाज पढ़े। और बाज़ लोगों ने ये कहा है कि यहाँ इख्तिसार का माना है इख्तिसारे सूरह, यानी कोई सूरत पढ़े तो इतना मुख्तसर कर दे कि आखिर से एक आयत दो आयत पढ़ ले और जल्दबाजी में नमाज खत्म कर दे। चौथा कौल यह है, सही कौल पहले था, चौथा कौल यह है कि इख्तिसार का माना यह है कि आदमी नमाज को इस तरह से मुख्तसर करके पढ़े कि न क़याम ठीक से हो, न रुकू और सुजूद ठीक से हो, न और दूसरे अरकान ठीक से अदा हो, ये माना यहां मुराद है। तो इमाम नववी रहमहुल्लाह ये अक़वाल जिक्र करने के बाद कहते हैं वस्सहीहु अल अव्वल, सही बात वही पहली वाली है जिसके कायल मुहक्किकीन और अक्सर अहले लुगत और गरीबुल हदीस और मुहद्दिसीन हैं। अब ये मुमानात की वजह क्या है, क्यों इस तरह से नमाज पढ़ने से रोका गया है? तो इस सिलसिले में एक कौल ये है कि ये यहूदियों का अमल है, यहूदी ऐसा करते थे। और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत में बुखारी के अंदर इसकी सराहत भी है, अन्ना ज़ालिका फ़िअलुल यहूद, यहूदियों का यह अमल था, इस वजह से आपने उनकी मुशाबहत से मना फरमाया। दूसरा कौल यह है कि यह शैतान का अमल है, शैतान ऐसा करता है। और तीसरा कौल यह है कि दरअसल शैतान इबलीस जब जन्नत से निकाला गया था, रादे दरगाह किया गया, तो इसी तरह से वो अफसोस करता हुआ कमर पर हाथ रख के भागा था। एक चौथी इल्लत भी लोगों ने बताई है कि इस तरह से मुतकब्बिर लोग खड़े होते हैं, इस वजह से ऐसा करने से रोका गया, वल्लाहु आलम। तो सही बात तो इस किस्म की चीज़ों में यही होती है कि जब कुरान और हदीस में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म मिल जाए तो मुसलमान का काम, बंदे का काम उसको बजा लाना है, उस पर अमल करना है, उसकी इल्लत को छोड़ दे। बाकी चूंकि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस में यहूदियों के फेल की सराहत की गई है तो उसको माना जा सकता है। चलो आगे। शेख कुर्सी पर नमाज पढ़ने का तब क्या हुक्म होगा? बेटा ये तो है ना, माजूर के लिए शरीयत में रुखसत है, माजूर के लिए शरीयत में रुखसत है
कि खड़ा होने पर कादिर नहीं है तो बैठ के नमाज पढ़े, बैठ के भी नहीं पढ़ सकता है, बैठने की भी ताकत नहीं है तो लेटे लेटे पढ़ ले। तो उसी पर उलमा ने कयास किया है। बाज बीमार ऐसे होते हैं कि बैठना उनके लिए मुश्किल होता है, घुटनों वगैरह का दर्द अक्सर लोगों को हो जाता है, यहाँ तक कि जवानी में भी लोग घुटनों के दर्द में मुब्तला हो जाते हैं। हाँ, तो उनके लिए कुर्सी पर बैठ करके पढ़ने में कोई हरज की बात नहीं है। तो फिर जब से इसीलिए बैठने की मस्जिदों वजह में से लोग बैठने कुर्सी पड़ा। का इंतजाम करने लगे हैं, पहले नहीं होता था। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। बैठने की अगर इस्तिताअत नहीं है, कुदरत नहीं, तो फिर एक तीसरा ऑप्शन है ना कि शेख उससे दलील पकड़ लिया जाए कि कुर्सी पे बैठे। आए, मैं ये नहीं कह रहा समझ। हूँ शेख, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 ऑप्शन हैं कि अगर खड़े होकर नहीं तो बैठ के नहीं तो लेट कर पढ़े। तो अगर तीसरा ऑप्शन मौजूद है तो उसको मतलब इख्तियार करना चाहिए। अब इससे कहाँ इस्तेदलाल कर लिया गया कि अगर बैठने में कुर्सी पे ही बैठा जाए तभी उसको आराम मिलेगा। नहीं, बैठने की बात है ना कि बैठ करके पढ़े। अब उस पर नहीं बैठ पा रहा है, मान लीजिए कि पैर में जख्म हो गया है, नहीं बैठ सकता, तो कुर्सी ही पर बैठ ले। अब कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकता, बाज लोग ना फर्श पर बैठ सकते हैं ना कुर्सी पर बैठ सकते हैं, उनके लिए मजबूरी है तो वो लेटे लेटे पढ़ेंगे। चलो, शेख इस हदीस में एक हाथ रखने का जिक्र है पीठ पर या फिर दोनों हाथ? आए, हाथ, एक हाथ रखने का जिक्र है शेख कि मतलब एक हाथ रखकर नमाज न पढ़े या दोनों ही हाथ? इमाम नववी ने जो अल्फाज जिक्र किए हैं उसमें यद का जिक्र है, वहवल्लज़ी युसल्ली व यादुहु अला खासिरतिही। हाँ, उसका हाथ कमर पर हो, इसका मतलब कि दोनों में से कोई हाथ कमर पर रख करके पढ़े तो उसको मुख्तसिर कहेंगे। जी शेख। चलो, बाबुन कराहतु मस्हिल हसा व तस्वियत तुराबी في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر شيبة قال حدثنا بكيع قال حدثنا هشام الدستوائي أن يحيى بن أبي كثير أن أبي سلمة عن معيقيب النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني قال لا بد فاعلا فواحدة. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया मस्जिद में मसह का। अब मसह से क्या मुराद है, यानी अलहसा, यानी मसहुल हसा मुराद है, कंकरी को बराबर करना, कंकरी को हटाना। काला, आपने फरमाया कि इन कुंता ला बुद्दा फाइलन, बुद्ध माने चारा, ला बुद्दा कोई चारा ना हो यानी जरूरी हो, तो अगर तू जरूर ऐसा करने वाला हो फवाहिदतन तो एक मर्तबा। वाहिदतन ये मंसूब है, फेल मुकद्दर इमसह का मफूल बनेगा, फ़इमसह वाहिदतन। मतलब यह है कि किसी जगह आदमी नमाज पढ़ रहा है, वहाँ सामने कंकरियां हैं, सजदा करेगा तो पेशानी में कंकरियां चुभेंगी, तकलीफ होगी। तो अगर ऐसी सूरत है तो एक मर्तबा हाथ से उसको बराबर कर दे या वहां से हटा दे, बार बार ना करे। तो मालूम हुआ कि नमाज, अच्छा ये नमाज की हालत की बात है, और नमाज से पहले अभी नमाज शुरू नहीं हुई तो जैसे चाहे जितनी मर्तबा चाहे उसको हटाए, तो नमाज के अंदर की बात है। तो ये उसके नीचे वाली हदीस भी उसी के हम माना है, यानी मोहम्मद बिन मुसन्ना वाली, और हदसनी है उबैदुल्लाह वाली, और अबू बकर बिन अबू सब एक शैबा जैसे वाली। शेख। हाँ बाप से रहे। जी, टाइम घंटी हो तो गया, नहीं कल लगी। से इंशाल्लाह बाप से पढ़ेंगे। अच्छा, घंटी का टाइम हो गया। चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि
وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام